students, after a break today we will restart our online class. I hope you are doing well. Today we are going to start our next chapter number 10th, circles. First of all we will do an introduction part of this chapter. सब तो पहला basic definition of circle. A circle is a collection of all points in a plane. Circle की है collection आ all points दी in a plane. ने कोई plane let कर लो, plane है, ठीक है. All points हुणे इत्ते points ਤਾਂ जिन्ने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है. पर आपां किहड़े ਉਹ points लेने आ which are at a constant distance from a fixed point. ਤਾਂ let ਇਹ कोई fixed point आ, ठीक है. ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ points ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ fixed point ਤੋਂ constant distance ਤੇ ਹੋਣ. constant distance मतलब same distance ਤੇ ਹੋਣ, ठीक है. ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਆ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ मतलब ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ मतलब ਕਾਂਸਟੈਂਟ. ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਰੇਡੀਅਸ. ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ O ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ R ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਆ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਆ ਲਾਈਨ. ਸਰਕਲ ਦਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਫਸਟ ਕੇਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਲਾਈਨ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਨॉन ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਟੂ ਅ ਸਰਕਲ. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन टू अ सर्कल. इन सेकंड केस ये कोई सर्कल आ, ठीक है, कोई लाइन इनू टच करके जा रही है, ठीक है. इस पॉइंट ते लाइन इस सर्कल नू टच कर दी है ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ. ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਅ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਅ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟਸ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਨ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ. ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ ਲਈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇਨ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ A ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ A, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ. ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ. ਤਾਂ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਦਾ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਲ ਤੇ ਵੀ, ठीक है. तो मतलब एक कॉमन पॉइंट हो गया टेंजेंट का ते सर्कल का.
ਤਾਂ ਸੋ ਦ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨॉन ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸਰਕਲ ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿਕੈਂਟ। ਅ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟਸ ਅ ਸਰਕਲ ਇਨ 2 ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਕੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ PQ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਸਿਕੈਂਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੌਰਡ। ਹੁਣ ਸਿਕੈਂਟ ਤੇ ਕੌਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਸਿਕੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੌਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਅ ਕੌਰਡ ਇਜ਼ ਅ chord of a circle is a line segment. It is a line and chord is a line segment joining any 2 points on the circle. ठीक है, अगर सर्कल ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ B। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ AB ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? chord। AB ਕੀ ਆ? chord। अगर मैं PQ की गल करा तो एक ही आ जाएगा सिकेंट, राइट। तासो कोई भी सर्कल आ, ठीक है, लाइन सैगमेंट आ, सर्कल दे 2 पॉइंट्स नू लेके बनती है तो की हो गया कॉर्ड। अगर कोई लाइन इंटरसैक्ट कर दी, मतलब पास कर दी, लंघ जाती है सर्कल विचों दी, दैट इज सिकेंट। हुण आपां कुछ होर प्रॉपर्टीज करते हैं सर्कल दियां। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੌਰਡ ਦੀ, ਸਿਕੈਂਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਟਰ O ਆ, AB ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕੌਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੌਰਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ठीक है। अगर कॉर्ड सर्कल दे सेंटर विचों दी पास कर जे तो उन्होंने आपां की बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर नूं होर तुसीं की कह सकते हो, जिवें आपां कहा सीगा जिहड़ा फिक्सड पॉइंट आ वो सेंटर हुंदा, ठीक है। इस फिक्सड पॉइंट तो जिन्ने भी पॉइंट्स तो मिलके सर्कल बनिया उन्हां सब दा डिस्टेंस ये तो की हुंदा? कॉन्सटेंट, मतलब सेम हुंदा। तो आपां इह डिस्टेंस नूं आर दा नेम दिंदे आ, ठीक है। रेडियस नूं आर, तो इत्थों तो लैके इत्थों तक भी डिस्टेंस की होगा? आर। तो सो आप डायमीटर नूं आर प्लस आर 2r भी लिख देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ होर, हुण देखो किसी सर्कल दे विच तुसीं जिन्नियां मर्जी कॉर्ड्स बना लो, पर सब तो जिहड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड आ वो किहड़ी होगी? डायमीटर। तो इत्थों की पता लग्या तुहानूं? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर सब तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हुंदी है। नैक्सट टेंजेंट बारे आपां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट आ किते भी हो सकता सर्कल ते, इवें कोई लाइन जाती है इहदे तो इहनूं बोलदे आपां टेंजेंट। तो हुण एक सर्कल ते देखो ये टेंजेंट बन गया। जे मैं इत्थे एक पॉइंट ले ला, जिन्ने भी पॉइंट्स तो मिलके सर्कल बनिया उन्ने ही इहदे ते की है टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। जिहड़े पॉइंट्स तो मिलके सर्कल बनिया दीज आर अनकाउंटेबल, मतलब आप उन्होंने काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्ने ही आपां की बना सकते हैं इहदे तो टेंजेंट्स। इत्थे पॉइंट्स ले लो, टेंजेंट बन जाएगा, इत्थे पॉइंट ले लो, टेंजेंट बन जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब एक सर्कल ते तुसीं जिन्ने मर्जी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आवे तुहानूं इवें दा एक सर्कल ते किन्ने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन ड्रॉ ऑन अ सर्कल। पर एक चीज़ दा ध्यान रखना भी एक पॉइंट तो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता, ठीक है। हुण कोई सर्कल है, उहदे ते आ पॉइंट आ,
ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟ नहीं पास करा सकते, एक पॉइंट तो सिर्फ एक टेंजेंट ही पास ਹੁੰਦਾ, पर एक सर्कल ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स पास करवा सकते हो। नैक्सट ਹੁਣ सर्कल ਤੇ पैरेलल टेंजेंट्स किन्ने हो सकते हैं मैक्सिमम। दिस इज सेंटर, ठीक है। सेंटर तो ये डिस्टेंस आ ਜਿਹੜਾ ਇਹ सेम होगा, ठीक है। ਹੁਣ पैरेलल टेंजेंट्स ਦੇ ਲਈ पैरेलल लाइन्स ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ पैरेलल लाइन्स ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ सेम ਰਹਿੰਦਾ, ठीक है। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ डिस्टेंस ਇੰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬਣ ਜੇ, ठीक है। पैरेलल लाइन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ सेम ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ट्रांसवर्सल लाइन ਆ, ठीक है। ਤਾਂ पैरेलल लाइन्स ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਪੈਰਲਲ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਨੋ। थोड़ा जिहा भी पॉइंट तुसी चेंज करोगे तो इस टेंजेंट के पैरेलल टेंजेंट नहीं आएगा। ਇਹਦਾ मतलब मैक्सिमम सर्कल के उपर किन्ने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, दो। इत्थों तक मैं जो भी करवाया इत्थों तुहाडे क्वेश्चन नंबर 1 ते 2 हो जाएंगे। नैक्सट करन तो पहला आपां करदे हां थ्योरम 10.1 ज्योमैट्री वाला चैप्टर है, बहुत ध्यान नाल करना, वैसे बहुत ईजी है ये। थ्योरम 10.1 किया, a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। a tangent at any point of a circle, ठीक है। tangent किसी मर्जी पॉइंट ते तुसी ड्रॉ कर लो, जिवें मैं इत्थे मान लो कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ tangent ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। सॉरी थोड़ा जा मेथों, ठीक है, नहीं तो इधर कोई सर्कल ले लेने हैं, ठीक है। इत्थे कोई पॉइंट ले लिया, इहदे ते मैं टेंजेंट ड्रॉ करता, ठीक है। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ठीक है। हुण पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की है, ए वाला पॉइंट लैट कोई भी पी क्यू टेंजेंट आ, ए पॉइंट आ ए, इत्थे की है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ठीक है। तो आपां नूं की किहा, कहंदा जिहड़ा टेंजेंट हुंदा वो हमेशा रेडियस दे की हुंदा परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। मतलब तुसीं जिहड़ा रेडियस बनाउणा वो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट तो बनाउणा। वैसे तो जिहड़ा कोई भी आ पॉइंट तो लैके जिहड़ा मर्जी मैं डिस्टेंस ले ला सारे रेडियस होणगे, पर आपां नूं की किहा थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। तो अगर मैं रेडियस लवां तो ये हमेशा टेंजेंट दे की हुंदा परपेंडिकुलर। इस चैप्टर के दो थ्योरम्स आउणियां, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। हरेक क्वेश्चन के तुसीं रीजन देना, तुहानूं थ्योरम यूज होगी, ठीक है। तो सो इहदा प्रूफ आपां बाद चों करांगे, पर पहला इहदा जिहड़ा स्टेटमेंट वो ध्यान नाल सुन लो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ठीक है। टेंजेंट हमेशा रेडियस से की हुंदा परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाउंदा रेडियस टेंजेंट के उपर। नैक्सट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ते सैकेंड क्वेश्चन तुसीं अपने आप करने हैं। नंबर 3 फर्स्ट ते सैकेंड तुसीं अपने आप करोगे। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू इज MCQ टाइप आ, तुसीं देखना भी जिहड़ी पी क्यू की लेंथ आ वो कितनी आउंदी है, ठीक है। सो जिवें आपां नूं स्टेटमेंट दित्ती आपां उवें ही डायग्राम ड्रॉ कर लेने। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ठीक है। टेंजेंट पी क्यू आ एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, इहदा मतलब कोई भी सर्कल आ, ठीक है। जिहड़ा पी पॉइंट वो काहदे उपर लैना आपां सर्कल दे। हुण टेंजेंट पी क्यू क्या हो सकदा, पी इधर होवे क्यू इधर होवे, पर आपां नूं की कहता पी ऑफ अ सर्कल, मतलब जिहड़ा पी है वो पॉइंट वो काहदे ते होगा सर्कल दे उपर, ठीक है। टेंजेंट वैसे आप इदां लैने आ
पर P ऑफ अ सर्कल मतलब P इत्थे पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ, सो मैं की ले लिया टेंजेंट। जे लेना इधर भी तुसी ले सकते हैं। रेडियस 5 सेंटीमीटर, हुण ये सर्कल आ, लैट कर लो कि इहदा सेंटर आ ये, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 5, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना गिवन आपां नूं 5। रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, मतलब ओ की लेना आपां सेंटर एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हुण पी क्यू अपना टेंजेंट सी, पी पॉइंट सर्कल उपर लेना सी, इट मीनस जिहड़ा इधर पॉइंट है कि होएगा एक क्यू, ठीक है। ते ओ क्यू की गिवन आपां नूं 12 सेंटीमीटर। तो आपां की फाइंड करना पी क्यू। तो देखो हुण ये क्वेश्चन करन तो पहला हुण आपां थ्योरम पढ़ीए 10.1 की सीगी कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। कि जिहड़ा टेंजेंट आ, ठीक है, रेडियस ते टेंजेंट आपस विच की हुंदे आ परपेंडिकुलर, ठीक है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इट मीनस एंगल पी की आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इत्थे तुसी 10.1 थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो हुण देखो ये अगर 90 डिग्री आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OPQ, हुण राइट एंगल ट्रायंगल तो आपां पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। इहो जिहे क्वेश्चन तुसीं 9th च कीते होए आ। तो पाइथागोरस थ्योरम की हुंदी है कि जिहड़ा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्केयर ऑफ द हाइपोटन्यूज की हुंदा 90 के सामने वाला, ठीक है। स्केयर ऑफ द हाइपोटन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्केयर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स किहड़ियां हो गईयां OP दा स्केयर प्लस OQ PQ दा स्केयर, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हुंदी है हाइपोटन्यूज दा स्केयर किहदे इक्वल हुंदा परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। तो ये हाइपोटन्यूज हो गया 90 के सामने वाला, OP एक साइड होगी, PQ दूजी साइड होगी। तो तुसी की करना वैल्यूज पुट कर दो इत्थे, OQ की आ जाऊगा 12 स्केयर, PQ आपां फाइंड करना, OP कितना गिवन आ 5 दा स्केयर प्लस PQ दा स्केयर, ठीक है। 144 आजू 25 आजू 25 इधर जाके माइनस हो जू, तो PQ देखियो MCQ तुहाडा किहड़ा आएगा, किहड़ा ऑप्शन आएगा। नैक्सट बाकी आपां कल करांगे।